Good evening, friends. Am I audible? You can use the chat box to raise your queries. Am I audible? Okay. Okay. So in this session, we will discuss about cash remittances and cash management. You can raise the query by using the chat box. So swag notes. Anyone? Can you comment in the chat box? Whenever there is any doubt, any clarification is required, you can use the chat box then and there to get your doubts clear. Swag notes means a note which has become dirty over a period of time. ये नोट पुराना हो गया है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर. अगर कोई नोट नो वॉइस स्टिल नो वॉइस Am I audible, friends? A participant has written in the chat box that I am not audible. Okay. Sir, you are audible. There might be some local problem during the participant. You can start and continue, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. So, swag notes. जब कोई नोट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पुराने हो जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वियर एंड टियर होते हैं, वैसे नोट जिनमें 2 पीस होते हैं उसको हम लोग सॉइल्ड नोट कहते हैं. दूसरा जो म्यूटिलेटेड नोट्स. Mutilated note is a note of which a portion is missing or which composed of more than 2 pieces. Swagged notes में सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं. नो पार्ट इज मिसिंग. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत पुराने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर. म्यूटिलेटेड नोट्स में क्या है कि अगर दो से, अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 पीस अगर रहेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज सॉइल्ड नोट. 2 से ज्यादा अगर हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज म्यूटिलेटेड नोट्स. एक इसमें द पोर्शन इज मिसिंग. अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोर्शन अगर मिसिंग है तो इसको हम लोग एडजुडिकेट कैसे करेंगे, बट प्रायर टू दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई सॉइल्ड नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट्स एंड imperfect notes. Imperfect note, a note which is wholly or partially obliterated, shrunk, washed, altered or indecipherable, but does not include mutilated notes. Imperfect note, it is altered completely, it's not easy to understand. और shrunk, washed है, कभी धुल गया, उसको हम लोग imperfect note कहते हैं. Mismatch note, note which has been formed by joining a half note of one per note to half note of another note. सपोज करें कि अगर मेरे पास एक 10 का नोट है जिसका हाफ पोर्शन है और दूसरे 10 के नोट का मैंने एक साथ उसको पेस्ट कर दिया, दैट इज मिसमैच नोट. ये डेफिनेशंस हमारे साथ ये क्लियर होंगे, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. सो अगेन आई रिपीट, swirl note, it's dirty over a period of time due to normal wear and tear. 2-piece note are also treated as swirl note. Mutilated notes 2 से ज्यादा pieces होंगे, some portion is missing. Mismatch note दो अलग अलग पोर्शन को ज्वाइन किया जाएगा. जो imperfect note है, this is altered, shrunk, obliterated, उसको हम imperfect note कहेंगे.
स्क्रिबल नोट, कई बार समथिंग इज रिटन देयर, कोई बहुत पुराने घसीटे हुए एक जो हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग स्क्रिबल नोट कहते हैं. समथिंग इज रिटन ओवर देयर, written across currency note, except note with slogan and message of political or religious nature. ये जो नोट है, we will accept this over a counter, लेकिन हम लोग फिर से इसको री इशू नहीं करेंगे for the circulation. Notes with slogan, political or religious message, scribbling, stain, etc. are unfit for usage and circulation and go against clean note policy. Such notes received from the member of public may not be reissued for circulation. जो क्लीन नोट पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट में है स्क्रिबल नोट्स, और ये जो नोट्स हैं हम वी कैन एक्सेप्ट that note, but we can not reissue it again for circulation. वैसे नोट जिसपे पॉलिटिकल और या फिर रिलीजियस मैटर अगर लिखे हुए हैं, एक दैट विल नॉट बी लीगल टेंडर. वैसे नोट जिसपे पॉलिटिकल और रिलीजियस नेचर की कोई चीजें अगर लिखी हुई हैं, it will be seized to be legal tender. All bank notes with scribbling stain, including color stain, continue to be legal tender. जो जिसपे कोई नोट जिसपे कुछ कलर्स लग गए हैं, स्क्रिबल्ड है, उनको we can accept that they all will be remain legal tender. We have to take that cash, we can exchange that. But if any political or religious matter is written on a currency note, it will be it will no more be a legal tender note. Everything is crystal clear. Okay, friends, you can raise your query in case of any doubt. You can use the chat box to get your doubts clear. Shrink wrapping is a process by which thin layering of shrink film material of the polymer plastic wrapped the currency notes bundle for safety or protection purpose. एक जब हम लोग सॉइल नोट जब हम आरबीआई को रेमिट करते हैं, तो यहाँ पे एक हम इसको 1000 पीस के पीसेस में इसको हम रेमिट करते हैं. तो जब भी हम लोग आरबीआई को रेमिट करेंगे तो इसको श्रिंक रैपिंग हमें करना होता है, जिससे कि वो प्रॉपरली रैप्ड रहे और उसका जो बंडल हो वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हो. Soil note should be accepted over the bank counter in payment of government dues and for credit to account of the public maintained with the bank. These notes should be issued to the public as reissuable notes and shall be deposited in currency chest for onward transmission to RBI offices. Benefits of soil notes remittance to RBI. Yes, yes, Satyendra ji, that is right. Benefits of soil notes remittance to RBI. There is incentive. Suppose if we send soil notes to RBI, incentive of 2 rupees per packet is paid by the RBI on soil notes. In case denomination of 50 rupees and below. जब हम आरबीआई को सॉइल नोट्स भेजते हैं 50 रुपए उससे नीचे के,
तो हमें 2 रुपए प्रति पैकेट हमें इंसेंटिव मिलते हैं, 2 rupees per packet in case of soiled note. That is 100 piece. 100 piece. All remittances of soiled notes to RBI be mandatorily recounted and resorted through note sorting machine, and suspect notes in reject packet manually verified by officials accompanying the remittances. Soiled notes are required to be remitted in bundle containing 1000 pieces, each of the same denomination. Whenever we will remit the soiled notes to RBI, it will not be sent in 100 rupees packet. It will be sent in 1000 pieces. It will be shrink wrapped. Instead of 10 packets of 100 pieces each, we will send it in 1000 pieces, except in case of adjudicated notes. Is that clear? The things are getting clear? Okay. In case of any doubt, you can use the chat box. All bundles of soil notes should invariably be shrink wrapped. The name of and code number of the chest may also be inscribed on the bundle for easy identification. What are adjudicated notes? Okay, I'll come to that point. Please repeat. Okay. Please repeat previous point. Okay. What are the adjudicated notes? Okay. Okay. I'm repeating. I'm going to the previous slide. Okay. Can screen shared. See, here it is written. Soil notes are required to be remitted in bundles containing 1000 pieces, each of the same denomination, instead of 10 packets of 100 pieces each. जब भी हम soil note को remit करेंगे तो 1000 pieces का वो होगा, जाहिर सी बात है कि उसका डिनोमिनेशन सेम होगा। ये जैसे 100 रुपए का 100 पीसेस का हम एक पैकेट बनाते हैं, वो पैकेट वाइज नहीं होगा, वो 1000 पीसेस के होंगे। और एक जो क्वेश्चन है एडजुडिकेट, अभी व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट म्यूटिलेटेड, दैट पॉइंट विल बी वेरी क्लियर। हिंदी में ओके, हिंदी ओके। Value to be ascertained, educated, adjudicated. Okay, I will discuss that point. Lower denomination note, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees are sent to RBI in multiple of 50,000 pieces. Here it is. Lower denomination notes, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees are sent to RBI in multiple of 50,000 pieces. Here, preliminary verification of soil note received under revised scheme would be carried out by Reserve Bank of India by bundle verification rather than packet verification. So the preliminary, अभी तक किसी के कोई सवाल, किसी को कोई confusion? Incentive will be given on packet. Incentive will be given on the packet basis, 2 rupees per packet. Any questions so far?
Any questions? Is that clear? Any question? Shall I move ahead? Okay, thank you. Okay. In case of detection of any shortfall discrepancy, the bank's representative accompanying the remittance can make a request to RBI for recounting. A person from the chest is going to RBI. He is having the RBI will process that. The processing of note is done in denomination wise and bank wise. RBI में denomination wise और bank wise होगा. Till processing of one batch of notes pertaining to particular bank is completed, the next batch is not taken up for processing. Okay. जब भी यहाँ पे बैंक ऑफिशियल जब भी रिमिट हो गया कैश टू द आरबीआई, बैंक ऑफिशियल जो प्रोसेस करेंगे काउंटिंग एंड सॉर्टिंग जब आरबीआई में होंगे तो दे कैन the process will be done at the Reserve Bank of India. It will be done denomination wise, bundle wise. Suppose in case of any shortfall is there, the person, the official can request to them for recounting, for rechecking. Even then, that official is satisfied, that representative is satisfied, then he will take up the matter, notes be taken off line shading. It should be ensured that the procedure is followed by the issue department of RBI. तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाएंगे रिजर्व बैंक में, उनका जो नोट काउंटिंग होगा, इन केस कोई शॉर्टफॉल है दे कैन रिक्वेस्ट फॉर recounting and re-verification for the pieces. Only after the bank representative satisfy himself, the notes be taken for offline shading. Half value paid notes, rejected notes packed separately in a sealed cover may also be sent to Reserve Bank with soiled notes. जो भी half paid notes हैं, rejected note हैं, वो separately by registered और insured post के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं या फिर soiled note के साथ भी भेजे जा सकते हैं, but it should not be mixed up. That claim has to be taken. The question. Suppose अगर जाता हूं, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मैं करेंसी चेस्ट से गया, मैं आरबीआई देयर इज काउंटिंग, वहां पे मुझे रिजर्व बैंक में बताया जाता है एंड मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूं कि दिस इज देयर इज सम shortage. In that case it has to be compensated, it has to be adjusted. The half paid note should not be mixed with soiled note and should be shown separately at the end of the invoice. यहाँ पे एक चीज ये है कि all old series bank note issued prior to 2005 to be remitted to RBI as soiled note. जो भी 2005 के पहले का जो भी नोट इशू किए गए हैं वो स्वाइल्ड नोट ट्रीट किए जाएंगे. जो भी नोट है करेंसी नोट which is issued before 2005 will be treated as soiled note and it will be remitted to Reserve Bank of India. Scribbled bank notes to be treated as soiled notes and remitted to Reserve Bank.
what is value of prior 2005? What is value of prior 2005? देखो सपोज करो देयर इज अ करेंसी नोट, अगर 100 रुपए का कोई नोट अगर आपके पास आता है जो कि 2005 से पहले का इशू किया गया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और आप उसको रेमिटेंस में आप इसको एज अ सॉइल्ड ट्रीट करेंगे और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज देंगे। आप इसको फर्दर सर्कुलेट नहीं करेंगे, आप इसको पब्लिक को फिर से नहीं इशू करेंगे। Clear? Prior to 2005 means MG series. No, irrespective all old series of bank notes, जो भी 2005 के पहले के जो issued note हैं, it will be Nikhil ji, there is a question, you can use the chat box. निखिल जी यू कैन यूज द चैट बॉक्स। जो भी 2005 के पहले के जो इशूड हैं उसको we will treat that as a soiled note and it will not be further circulated. It will be remitted to Reserve Bank of India. There is accumulation of soiled notes in the branches which is adversely affecting the bank's interest in the following manner. Overnight cash holding is kept on higher side thereby causing revenue loss. कभी भी हम अगर हर ब्रांच की सर आई नीड दिस पीडीएफ। ओके ओके, स्क्रिबल नोट्स, सपोज करिए कि अगर कोई नोट है और उस पर लिखा हुआ है कुछ, समथिंग इज रिटेन, बहुत कुछ उसमें कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो उसको हम लोग स्क्रिबल नोट कहते हैं। स्क्रिबल नोट को हम एक्सचेंज करेंगे, स्क्रिबल नोट लीगल टेंडर है। लेकिन वैसे नोट जिसपे पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर के नेचर की चीजें लिखी हैं, इट विल नॉट बी लीगल टेंडर। ठीक है निखिल जी? So every branch is having the cash retention limit. The effort should be made to keep that cash within the retention limit. It should be kept in the joint custody. A head cashier, an incumbent in charge, or the deputy manager or senior manager. कभी भी जब कैश ओपन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ कस्टोडियंस, जो भी दो ज्वाइंट कस्टोडियन होंगे उनके प्रेजेंस में कैश ओपन होगा। द स्ट्रॉन्ग रूम मस्ट रिमेन अंडर द डबल लॉक ऑफ द custodian of cash. A strong room must remain under the double lock of the custodian of cash. Every entry in cash reserve book must be authenticated by both the custodians. Before, not audible. Before a strong room is opened for taking out the deposit, the main door of the branch should be closed and person unconcerned with the cash should be not be allowed to access to the strong room. जब स्ट्रॉन्ग रूम हम खोलते हैं फॉर डिपॉजिट फॉर कैश, तो वी कैन इंश्योर टू क्लोज द मेन डोर। इसमें एक और प्रोविजन है कि जब आप स्ट्रॉन्ग रूम में आप इंटर करते हैं, बिफोर ओपनिंग द कैश, जो ग्रिल डोर होती है स्ट्रॉन्ग रूम की उसको क्लोज कर ले, अंदर से उसको क्लोज कर ले।
Cash reserve register will remain in the strong room during the day and overnight. Remittance exceeding 20 lakh would be made only through cash van, currency chest van. Dual key for the container may be used for remittance exceeding 5 lakh, and in such case 2 keys should be kept and carried by SWO. जो भी जब हम 5 लाख के ऊपर का जब हम रेमिटेंस करते हैं तो जो भी बॉक्स होता है, कंटेनर होता है, उसके 2 चाबियां होंगी, 2 कीज, जो कि SWO और जो ऑफिसर जो कंपनी कर रहे हैं उसको उनके पास होगा. 5 लाख एंड अबव ड्यूअल की कंटेनर. नो कैश. कभी भी सिविल अनरेस्ट, रैट्स, टर्बुलेंस, कोई डिस्टर्बिंग कंडीशंस हैं, उस समय कैश बाहर नहीं जाएगा. कैश लॉक्ड रहेगा, चेस्ट बॉक्स लॉक्ड स्टील. द लेट आवर्स कैश रेमिटेंस by the branches and currency must be avoided. Previous slide again. Okay, wait a second. Okay, this is the previous slide. There is previous slide. If you have any question, you can use the chat box. Proper escorting and guarding arrangements must be available as per existing banker indemnity insurance policy. सर नोट्स किस सेक्शन में आता है? नोट्स किस सेक्शन में आता है मीन्स RBI सेक्शन you are talking about? That particular section that I don't know what is the particular section. I need to recheck. I don't remember exactly. That particular section is not known. I need to check it. Okay. जो भी आर्म गार्ड होते हैं वो अलर्ट रहें ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग के समय. Cash remittances should preferably be made through banks, cash van, customized cash van, which should be provided with all the required. Sir, can you please upload these PPT files? Okay, I'll share how to. Okay. Please stop chat. It is quite disturbing. Your voice. Can you read your lips just as ma'am did yesterday? So please show your face. So that even we miss. No, I am visible on the screen. Sachin ji, I am visible on the screen. In case cash van is not available, अगर कैश वैन अवेलेबल नहीं है तो हायर्ड व्हीकल को यूज किया जा सकता है, लेकिन टैक्सी को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू कोई 3 व्हीलर है या कोई रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है, उसके कंपेयर वी विल प्रेफर टैक्सी एज कंपेयर टू स्कूटर और 2 व्हीलर. जो भी
हम हायर करेंगे जो भी टैक्सी, हमें ये एफर्ट करना है कि वो बिल्कुल पास में नहीं हो, कॉल इट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टैंड और व्हीकल पार्क नियर बाई टू बी अवॉइडेड। तो लेकिन अगर कैश वैन अवेलेबल नहीं है तो हायर्ड व्हीकल कैन बी यूज्ड, taxi will be preferred, and the effort should be made to call it from a distant stand, and vehicle parked near the branch should be avoided. When no transport is available and the distance between the sending, अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ही कम है, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में पैदल भी रेमिटेंस किया जा सकता है, लेकिन ये 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होगा। इसमें अगर आर्म गार्ड अगर अवेलेबल हैं तो वो साथ में होंगे, लेकिन इसमें जो स्ट्रीट वगैरह को हमें अवॉइड करना चाहिए। Where the remittance are sent by train, incumbent in charge should ensure that these are sent during daytime on different days. कभी वैसे कोई सिचुएशन या ऐसे कोई जो ज्योग्राफिकल एरिया हो जहाँ से ट्रेन से भेजना हो, तो वहाँ दिन के समय भेजना है और अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग दिन पे भेजने की कोशिश होनी चाहिए। Now, the composition: cash not exceeding 20 lakh, one clerk और one ऑफिसर। 20 लाख से अगर कम अगर कैश है तो एक क्लर्क या एक ऑफिसर। 20 लाख से ज्यादा लेकिन 50 लाख से कम है, उस केस में 2 क्लर्क या फिर एक क्लर्क और एक ऑफिसर, या एक क्लर्क और एक गार्ड जो कि विथ और विदाउट आर्म्स भी हो सकते हैं। ये टीम होगी। अगर 50 लाख से ऊपर और 5 करोड़ से कम, मिनिमम एक क्लर्क और एक ऑफिसर, 2 आर्म गार्ड होंगे, मतलब उनके पास द आर्म्स विल बी अवेलेबल irrespective whether the insured own vehicle is used or private vehicle is engaged। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर 20 लाख रुपए से कम है तो आपका क्वेश्चन होगा कि कौन रेमिट कर सकता है, तो या तो एक क्लर्क या एक ऑफिसर 20 लाख रुपए से कम का रेमिटेंस कर सकते हैं। अगर 20 लाख से ज्यादा और 50 लाख से कम है तो 2 क्लर्क या एक क्लर्क एक ऑफिसर, या फिर एक क्लर्क और एक गार्ड। वो जो गार्ड है वो विथ और विदाउट आर्म्स भी हो सकते हैं, irrespective of whether the insured own vehicle is used or private vehicle is engaged। So एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था, आई होप ही गॉट हिज आंसर। $50 lakh about to 5 below 5 crore, minimum 2 clerk, minimum 1 clerk, 1 officer, and armed guard with firearms irrespective of whether the insured vehicle or private vehicle is used। एक यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर कोई नक्सल प्रभावित अगर कोई एरिया है तो वहां पे जो आपको आर्म्स है उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे विदाउट आर्म्स आपको कैश को कैरी करना है, जो भी adjudicate that okay, we will discuss, I am coming to that point। remittance of cash,
Can we remit cash by train? Yes, we can remit cash by train. We can remit cash by boat, by air. Yes, depending on the geographical area, it can. There is provisions. Remittance of cash in Naxalite area using guard with weapon is more likely to be targeted by. So remittance such affected area will therefore be done without arms. So now the participant is asking question. I'm replying. Okay, you are asking question adjudication. Let me get your doubts clear first. हमने बात की म्यूटिलेटेड नोट्स. देयर विल बी एडजुडिकेशन. जब हम म्यूटिलेटेड नोट में ₹2 पर पीस का आपका इंसेंटिव है. सपोज करिए कि हमने क्या बात की म्यूटिलेटेड नोट्स में, सम पार्ट इज मिसिंग, 2 से ज्यादा वो पीसेज होंगे तो उसको हम म्यूटिलेटेड कहेंगे. अब लेट्स सपोज कीजिए कि मैं आपके पास आता हूं, आप ब्रांच में हैं, मैं आपके पास आता हूं नोट लेके, करेंसी नोट लेके, जिसके 3 पीस हुए हैं. अब उसमें आप ये देखेंगे कि ये जो 3 पीस है, वेदर इट इज आइडेंटिफाइड, इसका कितना पोर्शन अवेलेबल है, कितना पोर्शन मिसिंग है. यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जब भी कोई म्यूटिलेटेड नोट्स अगर रहेंगे तो वहां पे मोर देन 50 रुपीज. अब मैं आपके पास आता हूं और कहता हूं कि सर आप मेरा ये नोट एक्सचेंज कर दें. वो म्यूटिलेटेड नोट्स हैं, 3 पीस 4 पीस उसके हैं. सो यू विल एडजुडिकेट, यू विल आइडेंटिफाई. अगर वहां पे ये कहा गया है कि अगर 50 रुपए से कम के अगर वो नोट अगर है और आपको अगर 50% से ज्यादा का पोर्शन अगर आपको मिल रहा है तो आप मुझे फुल वैल्यू देंगे. अब सपोज मैं पहले ये प्रोविजन है कि देखिए अगर कोई नोट, म्यूटिलेटेड नोट्स 50 रुपए से कम के अगर कोई करेंसी नोट अगर आपके पास जाता है और उसका 50% से ज्यादा पोर्शन रहता है तो फुल वैल्यू आप देंगे. और अगर 50% से कम पोर्शन में आपको देता हूं तो आप रिजेक्ट कर देंगे. यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि जो भी 5 रुपए के नोट्स हैं, यहाँ पे मैं आपको सपोज करो जो 10 रुपए के जो न्यू सीरीज है उनका जो लेंथ है वो 12.3 सेंटीमीटर है, विड्थ है 6.3, टोटल एरिया हो गया 77.49 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये 77.49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया हो गया. लेकिन मेरे पास कम से कम 39 स्क्वायर फीट आना चाहिए, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, तभी मैं इसको एक्सचेंज करूंगा. तब मैं कैसे एडजुडिकेट करूंगा कि मैं कितना वैल्यू आपको इसको दूं. यानी कि सपोज करो मैं आपके ब्रांच में आता हूं, आप पीएनबी में आप काम करते हो, मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास आता हूं, मैं नोट लेके, आप उसको देखेंगे कि 50 का नोट है. अगर मैं आपको 20 का नोट अगर देता हूं तो आप देखेंगे कि 20 के नोट में क्या प्रोविजन है. तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि हाँ 50 से कम का अगर करेंसी नोट आपके पास आता है तो आप ये रिकॉल करेंगे कि हाँ एक गाइडलाइन है जहां पे 50 से कम का अगर कोई करेंसी नोट अगर आता है उसका 50% पोर्शन से ज्यादा आपको मिलता है तो आप मुझे फुल वैल्यू देंगे. और 50% से कम का पोर्शन अगर मैं आपको देता हूं तो आप रिजेक्ट कर देंगे. तो यही चीज को आप क्या करेंगे, एडजुडिकेट करेंगे कि आप हमें कितना देंगे, कितना किस तरीके से क्या आप देंगे, कितना बड़ा है. ये हमने बात की 50 रुपए से कम के करेंसी नोट के बारे में. आगे हम चलते हैं. यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जो 50 से कम में है वहां दो क्लॉज है, या तो फुल देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। 50 से कम में क्या है, या तो फुल वैल्यू देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जब हम 50 के ऊपर के सीरीज में जाते हैं, जब 50 के ऊपर के 50 या उससे ऊपर के हम डिनोमिनेशन में जाते हैं, तो वहां तीन क्राइटेरिया है, 80%, 40 to 80% और लेस देन 40%। यहाँ पे देखते हैं, सपोज करो मैं आपके ब्रांच में आता हूं और मैं आपको लेट सपोज एक करेंसी नोट देता हूं 100 रुपीज की, और उसमें आप देखेंगे कि 80% से ज्यादा का मैं पोर्शन अगर देता हूं आपको, तो आप मुझे फुल वैल्यू देंगे। और अगर मैं 40% से 80% का के बीच का मैं पोर्शन देता हूं, एरिया देता हूं, तो आप उसको हाफ पेमेंट करेंगे। और अगर 40% से कम में देता हूं, तो आप वो रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके जो भी लिखे हैं 50 के न्यू सीरीज, 100 के न्यू सीरीज, 200, 500, 2000 ये लिखे हुए हैं, ठीक है। Very poor sound quality today. Yesterday was good. Sound quality. So I hope your queries are clear now. Okay. All withdrawal from currency chest and deposit into currency chest must be reported by the same day by 7 PM. जो भी करेंसी चेस्ट में जो विड्रॉल है, डिपॉजिट है, सेम डे विदाउट फेल 7 बजे तक उसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। अब यहाँ पे एक सवाल कि करेंसी चेस्ट से मिनिमम कितना अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है या डिपॉजिट किया जा सकता है। करेंसी चेस्ट से कम 1 लाख और मल्टीपल ऑफ 50,000। द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट or withdrawal from currency chest will be 1 lakh and thereafter multiple of 50,000. He might get so no, we have to follow the guideline that we discussed. I'll come to that point again. All withdrawals from currency chest and deposit must be reported on the same day by 7 PM. करेंसी चेस्ट में जो भी डिपॉजिट विड्रॉल होगा वो कम से कम 1 लाख रुपए होगा, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 50,000 होगा। मिनिमम 1 लाख एंड देयर आफ्टर मल्टीपल ऑफ 50,000। अगर डिले इन रिपोर्टिंग अगर होता है तो पिनल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% ओवर द प्रिवेलिंग बैंक रेट वो लगाया जाएगा। जो भी बैंक रेट से प्लस 2% का जो पिनल इंटरेस्ट है डिले रिपोर्टिंग के लिए लगाया जाएगा। जो भी पिनल इंटरेस्ट है वो T+0 बेसिस पे काउंट होगा। यानी आज जो ट्रांजैक्शन है, आज आपको करना था, आज नहीं किया तो आज से ही वो कैलकुलेट होगा। T+0 यानी जिस दिन करना था पर्टिकुलरली उस दिन से ही T+0 बेसिस पे पिनल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ सॉइल नोट रेमिटेंस, अगर सॉइल नोट रेमिटेंस में अगर कोई रॉन्ग अगर रिपोर्टिंग अगर होती है
तो उसमें 50,000 रुपए का इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू उसमें पेनल्टी लगाई जाएगी। डिलेड रिपोर्टिंग, a flat penalty of 50,000 may be levied on the currency chest for delay reporting. Exchange of soil note, 2 rupees per packet for the soil amount up to denomination of 50,000. Adjudication of mutilated notes, 2 rupees per piece. Sir, will MCQ be discussed at the end of the topic? Okay, we will discuss the MCQ. Okay. डिले रिपोर्टिंग आपको सेम डे बाई 7 PM आपको रिपोर्ट करना है। अगर नहीं रिपोर्ट किया तो वो पेनल्टी लगेगी एज पर RBI। अगर आप एडजुडिकेट करते हैं म्यूटिलेटेड नोट्स 2 रुपीज पर पीस, सॉइल नोट में क्या था 2 रुपीज पर पैकेट। अगर आप कॉइन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 65 रुपया पर बैग, 65 रुपीज पर बैग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन। अगर यही कॉइन अगर आप रूरल या सेमी अर्बन में अगर आप करते हैं तो 10 रुपया और, यानी कि 65 प्लस 10 75 रुपीज आपको मिलेगा। कैश डिपॉजिट बाय नॉन चेस्ट बैंक ब्रांचेस, अगर कोई नॉन चेस्ट बैंक ब्रांच अगर कैश डिपॉजिट करता है, सपोज करिए कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मेरे शहर में कोई ब्रांच है जो किसी चेस्ट से लिंक नहीं है, वो मेरे यहाँ जमा करते हैं, तो मैं चार्जेस अप्लाई करूंगा। वो चार्जेस क्या होंगे 5 रुपीज पर पैकेट। ये 8 रुपया अगर होगा, अगर वो क्लास अगर एक लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट अगर RBI का अगर है, मींस कि इफ इट इज डिजाइन्ड एट मॉडर्न करेंसी चेस्ट देन 8 रुपीज पर पैकेट, अदरवाइज इट विल बी 5 रुपीज पर पैकेट। अगर आपके ब्रांच में कोई दूसरा बैंक आता है जमा करते हैं कैश, तो इन दैट केस यू कैन लेवी दैट चार्जेस 5 रुपीज पर पैकेट। जो कैश है बाई मंथली उसकी वेरिफिकेशन होनी है। बाई मंथली वेरिफिकेशन कौन करेगा? अ टीम, वो टीम जिसमें जो करेंसी चेस्ट से कनेक्टेड ना हो। बाई मंथली यानी कि हर 2 महीने पे वेरिफिकेशन होना है करेंसी चेस्ट का, और वो करेंगे जो कनेक्टेड नहीं है करेंसी चेस्ट के ऑपरेशन से। इन दैट केस जो भी आपका 2% of balance held by the currency chest in all denominations should be subjected to detailed verification। 2% जो आपका है वो वेरिफिकेशन आपको करना है बाय द नोट सॉर्टिंग मशीन। बाकी के जो नोट हैं आप उसको बंडल पैकेट काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल वेरिफिकेशन करने हैं कम से कम 2% के। हाफ ईयरली वेरिफिकेशन है। हाफ ईयरली वेरिफिकेशन कौन करेगा? वो ऑफिसर्स डेप्यूटेड बाय सर्किल ऑफिस। इस केस में क्या है कि कम से कम 5% बैलेंस को चेक करना है थ्रू नोट सॉर्टिंग मशीन। बाकी के आप बंडल या पैकेट को काउंट कर सकते हैं। एनुअल सरप्राइज वेरिफिकेशन का भी प्रोविजन है बाय द कंट्रोलिंग हेड ऑफ द करेंसी चेस्ट। एनुअल सरप्राइज विजिट कौन करेगा? सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ द बैंक मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट। वो एनुअल उनका एक विजिट होगा सो दैट कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो रिस्क है उसको मॉनिटर किया जा सके, मैनेज किया जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जो 25 पैसे और उससे कम के जो क्वाइन हैं उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 25 पैसे और 25 से कम पैसे अब लीगल टेंडर नहीं है फ्रॉम द डेट 30th of June 2011। 2011 से 25 पैसे और उससे कम के डिसकंटिन्यू हो गए हैं। जो भी नोट अगर होंगे हमें उसमें 3 कलर का स्लिप लगाएंगे, जो व्हाइट, पिंक एंड ग्रीन। जो भी व्हाइट स्लिप होगा इट विल बी इशुएबल, जो पिंक होगा नॉन इशुएबल, और जो ग्रीन होगा ATM फिट ये होगा। जो भी आपको 3 में ये करना है, अपने कैश को रखना है, इशुएबल, नॉन इशुएबल और ATM फिट। जो भी आप इशुएबल होगा उस पे व्हाइट स्लिप लगेगा, जो नॉन इशुएबल होगा उस पे पिंक स्लिप लगेगा, जो ATM फिट होगा वो ग्रीन होगा। RBI के डायरेक्टिव के हिसाब से जो एक कलर कोडिंग बिन्स की जो डिजाइन किए गए हैं ताकि प्रॉपर उसका सेग्रीगेशन किया जा सके, उसके लिए जो बिन का जो कलर है
वो फ्रेश नोट के लिए ब्लू कलर रहेगा, रीइश्यूएबल के लिए सॉइल नोट्स पिंक, और जो रेड रहेगा वो नॉट प्रोसेस्ड इन नोट सॉर्टिंग मशीन। एक प्रोविजन है कि a few select currency chest branch will provide the exchange facility on one of the Sunday in a month. A few select currency chest branch will provide the exchange facility on one of the Sunday in a month. Exchange of soil notes. Exchange of soil नोट्स प्रेजेंटेड इन स्मॉलर डिनोमिनेशन। अगर 20 पीस, अगर कोई सॉइल नोट अगर आपके पास आते हैं जो कि 20 पीस हैं और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 5,000 रुपए है, तो वो एक्सचेंज किए जाएंगे ओवर द काउंटर। अभी तक किसी के कोई सवाल? Yes, GST also. That charges is exclusive of GST. You have charges plus GST. Sir, from where can we get this PPT? Rate code not processed in note sorting machine. Exchange of soil note, a smaller number, 20 pieces with maximum value of 5,000, it will be exchanged over the counter. अगर बल्क में अगर है, अगर वो 20 पीस से ज्यादा है, 5,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है, ब्रांच में एक्सेप्ट देम अगेंस्ट रिसीट फॉर वैल्यू टू बी क्रेडिटेड लेटर। mind this is for soil note, and then mutilated notes. Mutilated note के केस में up to 5 piece non chest branch normally adjudicated, यानी कि as per the procedure laid down by NRR 2009, pay and exchange over the counter। अगर mutilated notes, soil note में क्या बात की हमने, 20 पीस, यहाँ पे 5 पीस की हम बात कर रहे हैं। 5 पीस अगर आता है तो ओवर द काउंटर वो एक्सचेंज होगा। अगर if the non-chest branch are not available to not able to adjudicate the mutilated notes, the note may be received against a receipt and sent to the linked currency chest branch for adjudication। अगर जो अगर एडजुडिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आप उसको फर्दर उसको आप भेजेंगे अगेंस्ट द रिसीट फॉर एडजुडिकेशन टू द नियर बाई करेंसी चेस्ट। The probable date of the payment should be informed, but in any case it should not be more than 30 days। जो भी आप कैश लेंगे अगेंस्ट द रिसीट आप उसको क्रेडिट देंगे, बट वो 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ म्यूटिलेटेड एंड इम्परफेक्ट नोट, अगर 5 से अगर ज्यादा और 5,000 से ज्यादा की अगर वैल्यू है तो उनको हम एडवाइस करेंगे टू गो टू नियर बाई करेंसी चेस्ट ब्रांच बाय और बाय इंश्योर्ड पोस्ट गिविंग हिज और हर बैंक अकाउंट डिटेल्स और गेट देम एक्सचेंज देयर इन पर्सन। अगर उससे ज्यादा है 5,000 से ज्यादा तो वो इंश्योर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, इन पर्सन भी जाके उसको कर सकते हैं। All other person tendering mutilated notes whose value exceed 5,000 will be advised to approach nearby currency chest branch। ये हमने डिस्कस किया सॉइल नोट के लिए जो भी 50 रुपीज का है म्यूटिलेटेड नोट्स। दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये सारी चीजें जो करेंसी चेस्ट में है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग विजिट रजिस्टर, अलार्म रजिस्टर, हॉटलाइन चेकिंग रजिस्टर, बेट मनी रजिस्टर, रजिस्टर फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ इशुएबल एंड नॉन इशुएबल नोट्स, रजिस्टर फॉर इनवॉइस रजिस्टर एंड a wall mounting। एक important जैसे a wall mounted CCTV screen of not less than 40-inch display
लगा होना चाहिए, 40 इंच मिनिमम उसका होना चाहिए। एक्सट्रीमली ब्रिटल बर्न चार्ज स्टेप अप नोट्स, अगर एक्सट्रीमली बर्न है, स्टेप अप नोट्स हैं, अगर बिल्कुल एक दूसरे में है, उसको सेपरेबल नहीं है, इन दैट केस उसको हम नॉर्मल हैंडल नहीं कर सकते हैं, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट, और हम एडवाइस करेंगे कि वो इशूइंग ऑफिस जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर एडजुडिकेशन, जो कि उनके पास स्पेशल प्रोसीजर के हिसाब से वो उसका एडजुडिकेशन करेंगे अगर ब्रिटल बॉन्ड चार्ज स्टकअप नोट्स हैं तो। वेट मनी, वेट मनी बंडल ऑफ करेंसी नोट्स, एक सीरीज ऑफ नोट्स होते हैं जिनका बैंक ब्रांच रिकॉर्ड रखती हैं, या तो वो उसकी कॉपी रखेंगे या उसको लॉग बुक में मेंटेन करेंगे। बेट मनी को ट्रैप मनी या डेकोय मनी या रॉबर्स पैक भी कहते हैं। बेट मनी को रेगुलरली चेंज करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम 6 महीने के अंदर 6 महीने से मैक्सिमम 6 महीने से पहले तो कर लेना चाहिए। CMS कैश मैनेजमेंट सर्विस, it is especially designed for corporate client for collection of their fund for all over India through designated branches only via challan mode. Mode of collection cash, check, transfer. What is bit money? Okay. Collection under CMS designated branch, all the designated branch should accept the CMS instrument cash transfer clearing and give proper receipt to the customer. Retake carries from candidate now for white. Okay, let's discuss some questions. So here is the question. Please attempt that. The branch has to remit non-issuable and issuable notes which are in excess of cash retention limit of the branch to currency chest. Please attempt this question. Please attempt this question. All are requested to attempt this question. Daily basis, जो भी एक्सेस कैश है बियॉन्ड द रिटेंशन लिमिट, डेली बेसिस. At the end of each day, all withdrawals from the currency chest and deposit into currency chest must be reported to concerned linked office. जो भी करेंसी चेस्ट का जो फाइनल क्लोजर है, जो डिपॉजिट और जो रेमिटेंस के हैं, विड्रॉल्स के हैं, वो कितने बजे तक उसको रिपोर्ट करनी है? 7 PM, same day or the next day. So the right answer is same day by 7 PM. सेम डे 7 बजे तक इसकी रिपोर्टिंग करनी है जो भी विड्रॉल रिसीट है. द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल फ्रॉम द करेंसी चेस्ट विल बी, करेंसी चेस्ट से मिनिमम डिपॉजिट और विड्रॉल कितना होगा? प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. करेंसी चेस्ट से मिनिमम विड्रॉल और डिपॉजिट कितना होगा? 1 लाख, मिनिमम 1 लाख और multiple of 50,000 thereafter. In the event of delay in reporting currency chest transaction, penal interest at the rate of, अगर करेंसी चेस्ट को अगर डिले हो गया रिपोर्ट करने में तो कितना पिनल इंटरेस्ट लगेगा? कितना पिनल इंटरेस्ट लगेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट. 2% over the prevailing bank rate. Penal interest in the event of delay in reporting currency chest transaction will be calculated on. जो भी पिनल इंटरेस्ट लगेगा डिले के वजह से, तो वो डिले का कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगा? डिले हम किस दिन से कैलकुलेट करेंगे? डिले हम
t+0 से कैलकुलेट करेंगे सेम डे, जैसे हम बोलते हैं ना t+1 t+2 यानी टुडे प्लस 1 डे जो ट्रांजेक्शन है प्लस, सो t+0 सेम डे. Reporting of swile note remittances to RBI notes remittances should not be shown in withdrawal by chest. जो भी रिपोर्टिंग होती है स्वॉइल नोट रेमिटेंस की, वो क्या हम एज ए विड्रॉल बाय चेस्ट दिखा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? विड्रॉल, प्लीज माइंड दिस वर्ड, विड्रॉल. करेंसी चेस्ट को क्या हम विड्रॉल मानेंगे? Please mind this word. This is written here. Should not. Should not is written. In case reporting of swile note remittance to RBI are wrongly reported as withdrawal. स्वैल नोट आपने भेजा और wrongly report हो गया withdrawal, तो कितने का पेनल्टी होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. $50,000. Incentive given for exchange of swile notes over the counter at bank branches. इंसेंटिव कितना होगा? इसमें सारे लोग अटेम्प्ट करें और सबका जवाब भी सही होना चाहिए. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज अटेम्प्ट. और ये इसमें 100% एक्यूरेसी. स्वैल नोट एक्सचेंज के लिए कितना इंसेंटिव है? ₹2 पर पैकेट अप टू डिनोमिनेशन ऑफ ₹50. A balance of each currency chest should be verified at least once in by officer team of not connected. यहाँ पे देखिए हमने बाई मंथली बात की, हाफ ईयरली बात की, एनुअली बात की. बाई मंथली हमने कब बात की? नॉट कनेक्टेड. आंसर देखते हैं. 2 months बाई मंथली करेंगे यानी कि 2 महीने में जो कि कनेक्टेड नहीं होंगे करेंसी चेस्ट के ऑपरेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बैलेंस ऑफ इच करेंसी चेस्ट शुड बी वेरीफाइड एट लीस्ट कितने दिन में वेरीफाई होना चाहिए? किसके द्वारा? डेप्यूटेड बाय सर्किल ऑफिस के द्वारा. सर्किल ऑफिस के द्वारा जो डेप्यूटेड होंगे टीम, वो कितने दिन में वेरीफाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. 6 months में वो वेरीफाई करेंगे. वेरी गुड. द कंट्रोलिंग हेड ऑफ करेंसी चेस्ट शुड विजिट द करेंसी चेस्ट एट लीस्ट. जो कंट्रोलिंग हेड करेंसी चेस्ट के मार्च से अप्रैल कितने दिन में वो करेंगे? कितने बारी? वेरी गुड, एब्सोल्युटली परफेक्ट. once in a year, financial year. Very good. Note slip color used by the receipt cashier for non-issuable. Non-issuable के लिए कौन से कलर का स्लिप यूज करेंगे आप? नॉन इश्यूएबल के लिए कौन से कलर का स्लिप यूज करेंगे? परफेक्ट, परफेक्ट. ये याद रखिएगा, वहां पे अगर हमने बिन की बात की थी, यहाँ पे हम लोग स्लिप की बात कर रहे हैं. तो नॉन इश्यूएबल के लिए पिंक. अगला क्वेश्चन देखते हैं. All withdrawals from currency chest and deposit into currency chest must be reported through CYMCC portal. ये जो पोर्टल है इसके द्वारा रिपोर्टिंग होती है. A flat penalty of what amount may be levied on the currency chest for delay reporting irrespective of the value of net deposit. कितने अमाउंट का फ्लैट लगेगा, यानी कि irrespective of the amount कितने की पेनल्टी लगेगी? 50,000. Very good. You all are correct. Note slip color used by the receipt cashier for issuable note. Issuable note के लिए कौन सा कलर का स्लिप होगा? Issuable note के लिए किस कलर का स्लिप होगा? White. Bin color. Bin color coding for keeping note yet to be processed by note sorting machine. हमने 4 कलर बिन की बात की थी. वो कौन से कलर का बिन होगा जिसमें अभी हमने नोट सॉर्टिंग मशीन में प्रोसेस नहीं किया? कौन सा होगा? रेड होगा. वेरी गुड. Whether soiled note packet consisting of 1000 piece are shrink wrapped before remitting to RBI. जो सॉइल्ड नोट पैकेट होंगे वो 1000 पीसेस की, वो श्रिंक रैप्ड होंगे. ट्रू और फॉल्स? यस, 1000 नोट्स को आप श्रिंक रैप करेंगे.
When the counterfeit notes are detected in soiled note remittance of the bank, penalty at the notional value of the counterfeit note in addition to recovery of loss to the extent of notional. अगर कोई भी काउंटरफिट नोट्स अगर मिलते हैं तो कितने पेनल्टी लगेगी, कितने परसेंट, जो भी अमाउंट है और जो भी लॉस हुआ उसका और उतना ही पेनल्टी लगेगी. इंसेंटिव गिवन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ म्यूटिलेटेड नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट्स के लिए कितने का इंसेंटिव है, एडजुडिकेटेड नोट्स के लिए कितना. स्वाइल्ड नोट में क्या था, 2 रुपीज पर पैकेट था, लेकिन म्यूटिलेटेड में क्या है, 2 रुपीज पर पीस है, 2 रुपीज पर पीस. अ नोट मीन्स a note which has become dirty due to normal wear and tear, जो डर्टी हो जाते हैं ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, उसको हम कौन सा नोट कहते हैं, काउंटरफिट, एडजुडिकेटेड, म्यूटिलेटेड, स्वाइल्ड, कौन सा नोट कहते हैं, स्वाइल्ड नोट कहते हैं. In respect of mutilated notes less than 50 rupees denomination, अगर 50 रुपीज से कम का अगर डेनोमिनेशन है, सिंगल लार्जेस्ट अनडिवाइडेड पीस जो है 50% से ज्यादा है, तो कितना वैल्यू मिलेगा, कितना वैल्यू मिलेगा. जो 50 से कम था वहां दो क्राइटेरिया था, 50 के ऊपर फुल वैल्यू, 50% से कम में नो वैल्यू, तो यहाँ पे फुल वैल्यू आपको मिलना है. To ensure proper functioning of currency chest, the following register to be maintained. कौन कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना होगा स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, विजिट रजिस्टर, अलार्म बेल रजिस्टर, हॉटलाइन चेकिंग रजिस्टर, वेट मनी रजिस्टर, all of the above. Next question means a two-piece note pasted together wherein both the piece presented belong to same note and form the entire note with no essential feature missing. Please attempt this question. In case of any confusion, you can use the chat box to get your doubts clear. Soil notes. What is soil note? क्या no essential feature is missing? Please explain at you once more. Okay. वेट मनी क्या होता है, ओके ठीक है. अब मैं ये बता, सॉइल नोट क्या है कि दो पीस, मैक्सिमम दो पीस तक हो सकता है, कोई इसेंशियल फीचर उसमें मिसिंग नहीं होगा, उसको हम कहेंगे सॉइल नोट. म्यूटिलेटेड नोट्स क्या है कि उसमें समथिंग इज मिसिंग, सम पोर्शन इज मिसिंग, और वो जो दो से ज्यादा पीसेस में होंगे, एंड सम पोर्शन इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटिलेटेड नोट्स बोलेंगे. सॉइल नोट कुछ भी मिसिंग नहीं है और ज्यादा से ज्यादा दो पीस में है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पुराने होने की वजह से एक नॉर्मल वियर एंड टियर है, डर्टी है, उसको सॉइल्ड बोलेंगे. लेकिन म्यूटिलेटेड में सम पोर्शन इज मिसिंग और वो दो से ज्यादा पीस में होंगे. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि बोथ द पीसेस प्रेजेंटेड बिलोंगिंग टू सेम नोट, यहाँ पे सेम नोट है. Escort team of remittance not exceeding 20 lakh is 20 lakh. जो भी आपने क्वेश्चन ये वंस मोर, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, आई होप कि अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्लियर हुआ, अदरवाइज यू कैन रिपीट अगेन. अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से मैं बता दूंगा. Escort team for remittance not exceeding 20 lakh. Attempt this question. One clerk और one officer, एक क्लर्क या एक ऑफिसर. करेंसी चेस्ट विल रिमिट नॉन इश्यूएबल नोट्स टू. करेंसी चेस्ट किसको रिमिट करेगा नॉन इश्यूएबल नोट? जाहिर सी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंसेंटिव रिसीव्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइन, इंसेंटिव रिसीव्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइन,
पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना इंसेंटिव मिलेगा? 65 रुपीज पर बैग। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में एरिया नहीं लिखा है, अगर सेमी अर्बन रूरल अगर है तो 75 रुपए। इंसेंटिव रिसीव्ड फॉर कैश डिपॉजिटेड बाय नॉन कैश बैंक ब्रांच, कितना इंसेंटिव मिलेगा अगर कोई नॉन चेस्ट बैंक ब्रांच अगर कैश डिपॉजिट करता है तो कितना इंसेंटिव आपको मिलेगा पर 100 पीस? 5 रुपया। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 रुपीज पर पैकेट of 100 pieces. A currency chest diversion both between chest of the same bank and between chest of the different bank are reported as deposit or withdrawal. Escort team for remittance of above 50 lakh but not exceeding 5 crore. 20 लाख से 5 करोड़ का क्या होगा escort team? Minimum 1 clerk and 1 officer plus 2 guard with arms. Any note which is wholly or partially obliterated, shrunk, washed, altered, but does not include a mutilated notes. Please attempt this question. Very good, very good. I really hope this session is fruitful. You all are very good, very good, very good. Okay. You all are correct. Imperfect note. All branches of bank in all parts of country are mandated to provide which of the following services? सारे ब्रांच जो है सारे कंट्री के हर पार्ट में कौन से सर्विस प्रोवाइड करेंगे? Very good. All of the above: issuing fresh note, good quality notes of all denomination, exchange soiled, mutilated, defective notes, accepting coins. All that. Escort team for remittance above 20 lakh but not exceeding 50 lakh. 20 लाख से 50 लाख के बीच का क्या होगा escort team? Please read all the options. Please read all the options. Then reply. Any of the above. Either 2 clerk or 1 clerk and 1 officer, or 1 clerk or 1 guard with or without arms. All bundles of soil notes should invariably be shrink wrapped. True. A note in which a portion is missing or which is composed of more than 2 pieces. A portion is missing. Very good. You all are correct. Mutilated notes. So that's it from my side. I hope this session would have been fruitful for you. The response from धन्यवाद सर. oh, thank you so much sir, thank you. आशा करते हैं सभी लोग साथियों पूछ के. रहे हैं इनको प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? सर ये शेयर हो जाएगा सर इनको पूरा. ओके, पूरा शेयर हो जाएगा ना इनको? यस सर, अवेलेबल रहेगा सर शेयर पूरा नॉलेज सेंटर पे अपलोड हो जाएगा सर ये. ओके, नहीं ये पीपीटी कई लोग डिमांड कर रहे हैं. पीपीटी भी शेयर हो जाएगा सर. पीपीटी ओके, पीपीटी दैट पीपीटी कैसे शेयर होगा सर, ये लोग पूछ रहे हैं, एक बार बता दो. सर ये एक्सेस जो जिसने रजिस्टर्ड किया है ना उसके ऊपर अवेलेबल कर देंगे तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे ये वेबएक्स पे. ठीक है सर. ओके सर, ओके ओके. ऐसा करते हैं सर आज का 2 क्वेश्चन है मैं ले लेता हूँ जी.
देखिए बेट मनी एक सीरीज ऑफ नोट होगा। जैसे सपोज करो कि मैं ब्रांच में हूँ, तो मेरे पास एक सीरीज ऑफ नोट्स हैं, उसको मैंने लॉग बुक में मेंटेन किया है या उसकी कॉपी कराई है। इसको हम लोग कैश के साथ रखते हैं। जब भी कोई लूट अगर होती है, जिसको हमने बोला कि इसको डेकॉय मनी भी बोलते हैं, तो अगर ये करेंसी जब ये अगर सपोज करो इसकी अगर चोरी अगर होती है, इसकी लूट अगर होती है, और ये नोट क्या हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। अगर सपोज करो कि मेरे पास एक सीरीज ऑफ नोट्स हैं जिसको मैंने मेंटेन किया है, और उसकी अगर लूट अगर होती है, तो वो मैं जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस के साथ शेयर कर सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास शेयर रहेगी। जैसे वो नोट्स कभी भी आइडेंटिफाइबल होगा, वो ट्रेस होगा, तो उसके जरिए हम लोग पहुंच सकते हैं। ये एक बड़ा विटनेस का काम करता है। ओके, काउंटरफिट नोट्स का एक जो है वहां पे जो प्रोविजन कि आपको कोई भी नोट देयर इज स्टैम्प, आपको हर नोट पे किसी भी केस में आपको वो नोट लौटाना नहीं है। आपको एक रिसीट देनी है। आप उसको काउंटरफिट नोट्स उसको आपको वो जब्त कर लेना है। अगर 4 नोट अगर आपके पास आते हैं एक ट्रांजेक्शन में, अगर 4 नोट अगर नकली अगर आते हैं, तो यू विल रिपोर्ट थ्रू द नोडल ऑफिसर। वो जो पुलिस अथॉरिटी के पास वो एंड ऑफ द मंथ में थ्रू नोडल ऑफिसर वो चले जाएंगे। अगर 5 से ज्यादा अगर करेंसी नोट्स अगर आते हैं इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, इन दैट केस एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। एडजुडिकेट मीन्स आप उसका डिसीजन ले देंगे हैं। सपोज करो कि मैं आपके पास आता हूँ म्यूटिलेटेड नोट्स। एडजुडिकेशन किस केस में हो रहा है? म्यूटिलेटेड नोट्स के केस में हो रहा है। मैं आपके पास आता हूँ और कहता हूँ सर ये लो, ये मेरा नोट है, आप इसको दे दो। तो आपको एटलीस्ट ये डिसीजन लेना है कि दैट नोट इज जेन्युइन, इसका कितना वैल्यू आप दोगे नहीं दोगे, ये आइडेंटिफाइबल है नहीं है। यू विल टेक द डिसीजन। तो आप उसको एडजुडिकेट करेंगे कि हमें कितना वैल्यू देना है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वो अगर सपोज करो कि अगर वो 50 रुपए से ज्यादा है और मैं सिर्फ 30% पोर्शन अगर दे रहा हूं, तो आप एडजुडिकेट करोगे कि आप उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे। दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू। So thank you all. Thank you. It's been really nice to interact with the wonderful people. Thank you all. That PPT will be shared to all of you. मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, सेपरेटली शेयर हो जाएगा पीपीटी। आशा करते हैं सर आज का सेशन हमारे सभी प्रमोशन एस्पायरेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगा। जैसा कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और आपने सारी क्वेरी रिजॉल्व करी है, बहुत अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे करा है हमारे जो भी कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके पॉइंट्स का। So much, sir. So, really, so और much. इसी प्लेटफॉर्म से सभी मेरे बाकी साथियों से निवेदन ये है कि कल शाम 6 बजे जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा डॉक्यूमेंटेशन एंड पोस्ट सैंक्शन, आप सभी साथियों से निवेदन है कि समय 6 बजे शाम को आप ये समय पे इस पे कनेक्ट हो। थैंक यू। Thank you all. Thank you for wonderful response. Thank you so much. You people are really wonderful. Your response is very encouraging. Thank you all. थैंक यू सर, थैंक यू।